enjoyable. Jokes and fun, free and most. और हम इस सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे, काफी सारे जोक सुनेंगे, मस्ती करेंगे। Yes, wireless vision and urban agriculture action plan. Presentation. Good evening. May you know, we have started this 5 years, 33 years before. And you see, everyone is born in this world, so first they need good health. When people born, they just put organic agriculture system. If we have organic food, that means we can make our people healthy. If our people is healthy, then we need the education. If someone is healthy, and healthy child, be healthy is the first step. Second step, be educate. And be educate, we have good health and good education. After then, someone need a good livelihood. That means we have good health, good education, a good business, good livelihood, good earning. Then that means we are not happy. When we are happy, to make happy, what make me happy? Then we have to go through the spiritual life. So we need four things. First of all, we need the good health. Second, we need the good education. And third, we need a good earning. In Buddhism, we say the Samma Ajivu. गुड अर्निंग। एंड फोर्थ वन, हमारे पास जैसे अच्छा हेल्थ है, अच्छा पैसा है और अच्छा शिक्षा है, अच्छा व्यवसाय है, तो उसके बाद इसका मतलब ये नहीं 3 चीज हो गई तो मैं बहुत अच्छा हो गया। अच्छा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए ये YBS का विजन है कि लोगों को अच्छा हेल्थ देना, अच्छा एजुकेशन देना और अच्छा उनको व्यवसाय लाइवलीहुड देना, और उसके साथ साथ अपने इनर पीस को बढ़ाने के लिए, इनर पीस के लिए, आंतरिक सुख सुविधाओं सुख के लिए आदमी को आध्यात्मिक शिक्षा देना। So this through, if you want to make the happy world, if you want to healthy world, if you want to educated world, if you want to everyone have the work or job for their survive their life, in that case we go through the organic agriculture system. So this is the vision of our YBS. So since long we are coming slowly we are trying to teach our children, teach our people, teach our villagers to for the organic agriculture. But this time Mr. Kim came from South Korea. He came the last 2-3 years before Corona. He came and he teach us to how to develop the organic agriculture system so that we can save this world. Through his teaching, we try also some more things. And this time he came, he teach us very deeply. And actually, his morning to evening, he has very hard work, and he saw many things, and he teach many technique. Through this technique, if really we spread this technique in our country, in our village or our family, that means we completely avoid the chemicals within 2 or 3 years. So it is very important. If you want to save this world, you go through this technique or this system. Otherwise, in future there will be a big problem because of pesticide in the food. To make the pesticide, we destroy the ecosystem. Disease are killed. We don't know what disease, but every day, continuously, new disease are created because of the pesticide, because of we are destroying the environment. If we go through the organic agriculture system, if we go through the ecosystem, that means we can make very wonderful world, and we can make our wonderful and healthy society or healthy community. So this is the way to save
suppose that we have very good healthy person and we have very good education and we have very good business and we are destroying the nature system. We are destroying and we are earning the poison and give to that poison to the people. People eat that poison and they will be die and they will be destroyed many things. So very important to teach the people, especially teach the children how to save our health and how to, if our health is good, that means our mind is good. If health is not good, that means mind is not. सुख के लिए फिर क्या चाहिए? क्या इन तीन चीजों से सुख होता है? इन तीन चीजें होने से सुख ही नहीं होगा। सुखी तब होगा जब आदमी आध्यात्मिक जीवन जिएगा। और आध्यात्मिक जीवन कब जिएगा? जब ये चीजें आदमी के पास तो अच्छा भोजन होगा। अच्छा भोजन कहाँ से होगा? अच्छा भोजन अच्छा खाओगे तो अच्छा भोजन होगा। आजकल हम खाते क्या है? बहुत सारी पॉल्यूटेड चीजें खाते हैं। गेहूं टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं। उनमें क्या है? उनमें क्या है सबसे ज्यादा? उसमें केमिकल है। तो हम केमिकल खाते हैं और पॉल्यूशन है उसके अंदर। और जब हम केमिकल खाते हैं तो केमिकल क्या होगा? बॉडी पे असर नहीं डालता, हमारी माइंड पर भी असर डालता है। तो क्या होगा? हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, फिर हमारी शिक्षा भी अच्छी नहीं होगी। जब हेल्थ और शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? तो हमारा व्यवसाय कैसा होगा? व्यवसाय भी ऐसे ही कैसा होगा? जब हमारी पूर्ति नहीं होगी, जब पूर्ति नहीं होगी तो इधर उधर की बातें सोचेंगे। तो हमारा मानसिक जो है बहुत मानसिक जो है हम दुखी होंगे, मानसिक दुखी होंगे तो हमारा अध्यात्म, हमारा जो अंदर का सुख है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें क्या करना क्या है कि हमें बहुत अच्छा भोजन खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार करना है। इसलिए अभी हमने ये 2012 से शुरू किया था यहाँ किसी के बस में, धीरे धीरे करते 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 आज यहाँ आ गए हैं। देखिए मिस्टर किम जो है साउथ कोरिया से लोगों को सिखाने के लिए आए। इस बीच में उन्होंने कई टेक्निक सिखाए हैं, बीसिंग मोड बनाना सिखाया और क्या नाम ऑर्गेनिक बहुत सारी चीजें ऐसी ऑर्गेनिक साबुन बनाना सिखाया, पेस्टिसाइड बनाना सिखाया, बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई कि जिसमें हमारा पैसा नहीं जा रहा बनाने में, और पैसा नहीं जा रहा है और हमको बन के मिल रही है जो बहुत बड़ी अवसर। बाहर जा करके देखिएगा हम लोगों ने अपने फॉर्म में जो लगाई है तो उसका कलर देख लीजिएगा, पहले पीला पीला था अब एकदम काला हो गया है। जो चीजें हम लोग खाद की बोरी बाजार से ला करके डालते हैं और वो इनका जो इन्होंने जो बना के दिया है वो 300 से 400 रुपए में 100 लीटर बना, और 100 लीटर को जो है वो 10,000 लीटर में कन्वर्ट करके खेत में दे सकते हैं। इतना चीपर सिस्टम कहीं दुनिया में है नहीं। इसलिए आप लोग यहाँ से जब अपने घर जाइएगा तो थोड़ी सी जमीन गोबर डाल करके उसमें कुछ बीज लगाइएगा, और बीज लगाने के बाद उसमें से जो चीजें आएंगी उसमें से जो चीजें आएंगी वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होंगी। और थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा फॉर्म बनाओ, थोड़ा पालक लगा दो, थोड़ा मेथी लगा दो, थोड़ा प्याज लगा दो, थोड़ा तोरी लगा दो, लौकी लगा दो, थोड़ी भिंडी लगा दो, तो थोड़ा थोड़ा आएगा ना। तो इससे एक शौक पैदा होगा लोगों को, और जब शौक पैदा होगा खाने के लिए अच्छी चीजें मिलेंगी। तो इस सिस्टम के द्वारा क्या है कि हम बच्चों को सिखाएं, और बच्चे जब सीख करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यही जब जो है आगे कभी कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा और कोई बड़ा अफसर बनेगा। तो ये जब ऑर्गेनिक सिस्टम उनके दिमाग में रहेगा तो ये जाकर के जीवन भर मतलब उस पर इनका ऑर्गेनिक सिस्टम को ये लोग बढ़ावा देंगे, और खाकर के जब इनको उसका उपयोग करके इनको जब लाभ होगा तो निश्चित ही ये अपने आप उगाने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, आज नहीं तो कल फूड का क्राइसिस इतना होने वाला है, और फूड का क्राइसिस के साथ साथ ये जितना हम क्या कर रहे हैं केमिकल को बनाने के लिए नेचुरल चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और नेचुरल चीजें जब टूट जाएंगी तब क्या होगा, तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रकृति के साथ हमें जीने की आवश्यकता है। हम अगर अपने पूर्वजों को देखते हैं तो पिछले जाते हैं 50 साल 60 साल 100 साल पहले जाते हैं तो कारें नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे लोग कमाते थे? सबके घर पर्याप्त भोजन होता था, लोग बहुत बलिष्ठ होते, ताकतवर होते थे, बैलगाड़ी और बैलगाड़ियाँ और क्या नाम है बैल और गाय भैंस के साथ खेती करके गोबर की खाद बना करके खेतों में डालते थे, और पूर्ण रूप से उनको ये भोजन मिलता था और उसको खा करके लोग काफी ताकतवर होते थे, और आज की जैसी बीमारियां नहीं थी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
जैसे मिस्टर कीमा ने अभी आकर के हम लोगों को जो सिखाया है अपने ऑर्गेनिक फॉरम में, इस तरह से सीखने की आवश्यकता है। और बहुत नहीं करो, तुम जाकर के सब अफसर बनना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम भी खाने के लिए पैसे नहीं खाए जा सकते ना, बहुत अच्छा घर नहीं खाया जा सकता है, बहुत अच्छी कार बनानी तो नहीं खाई जा सकती है, कंपनियों से बनाई हुई कोई भी चीज खाकर के जीवन बिताया नहीं जा सकता है। आदमी को जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? जी को बचाना चाहिए। कंपनी बचे चाहे नहीं बचे, कार बचे चाहे नहीं बचे, फैक्ट्री बचे चाहे नहीं बचे, लेकिन बचना क्या चाहिए? जमीन बचनी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जो चावल बना दी? दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री है चावल टमाटर बना दी? कोई ऐसी फैक्ट्री है जो आलू बना दी? आलू कहां से आएगा? खेतों से ही आएगा ना। तो खेतों से जब आलू आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? दुनिया की कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है तो हमें भोजन देता है। तो भोजन कौन देता है? भोजन हमें मिट्टी हमको भोजन देता है। और इस मिट्टी को ताकतवर बनाए रखना है। अगर मिट्टी को मैंने ताकतवर बना के लिए रखा तो क्या होगा? मिट्टी खत्म हो जाएगी, भोजन देना बंद हो जाएगा। और भोजन देना बंद हो जाएगी मिट्टी, तो क्या होगा? खाना ही नहीं होगा। और खाना नहीं होगा तो आदमी कितने दिन जिएगा? इसलिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आज 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को लोगों ने देश को आजाद किया। और ये भी अपने देश में बड़ी समस्या होने जा रही है कि ये जो पेस्टिसाइड है और जो केमिकल है दूसरे देशों से बन के मेरे देश में आ रहा है, उस पर किसान निर्भर है। और एक दिन क्या होगा? एक दिन ये होगा, इन दिस फील्ड और इन दिस रूम यू सी हाउ हार्ड वर्किंग ही इज हियर। आप समझिए कि कितना हार्ड वर्क किया है। एक छोटा सा कमरा, उसमें बिजली का पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, फिर बिजली नहीं, स्पेशली नो हैव इंटरनेट। आज की दुनिया में जो लोग इंटरनेट के साथ जीना चाहता है, और वो आदमी आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है? हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 8-10 बजे तक छदाम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिस्टम को हम लोगों को दे रहा है। छदाम नाम का कोरिया का कंपनी है, तो इन्होंने आकर के एक बहुत बड़ा काम कर दिया। YBS और छदाम का जो प्रोजेक्ट है